Hello students, today we are going to discuss our next topic in chapter number 25, deduction and collection of tax at source, जिसे हमने पिछले एक पार्ट में कर लिया। कुछ पॉइंट्स जो हमने उसमें डिस्कस किए, अभी आगे के फर्दर पॉइंट्स इन पार्ट नंबर 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज डिडक्शन allowable in different sections. What is the amount of deduction? These sections, as discussed in previous video, we are taking next one. First one in which we have discussed about the salary. Second one, payment from recognized provident fund to employee. अगर एक एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मिलता है यानी उसे आरपीएफ का वो मेंबर है, तो उस केस में जो टीडीएस है वो कितना होगा? If the amount of RPF at the time of payment is liable to tax, in that case tax shall be deducted at source at the rate of 10%. 10% की रेट से जो होगा TDS. If the employee fails to submit his PAN to the employer, the tax shall be deducted at the maximum marginal rate at the rate of 30%. If such amount is less than 50,000, no tax will be deducted at source. अगर ये अमाउंट 50,000 से कम है तो कोई भी आपका TDS नहीं होगा. This is regarding the recognized provident fund. Now next, point number 3, interest on securities under section 193. Section 193 में आपसे बात कर रहे हैं interest on securities की. The person responsible for paying income by way of interest on securities to a resident or domestic company shall at the time of payment thereof or at the time of credit of such interest in the books of accounts, whichever is earlier, deduct income tax thereon at the rate in force, और जो रेट आपकी रहेगी that will be 10%, applicable from 1/4/2020 up to 31st May 2020. यानी ये आपकी रेट जो थी पहले 10% से थी, अभी जो ये है 7.5% से एप्लीकेबल होगी फ्रॉम 14th May 2020 अप टू 31st March 2021. नेक्स्ट, टैक्स शैल नॉट बी डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम एनी इंटरेस्ट पेबल ऑन. कहाँ आपका टैक्स नहीं पेबल होगा, टीडीएस नहीं होगा? कौन कौन से केसेस में? एनएससी के केस में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिबेंचर्स हैं तो उस केस में, किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ रही है उस केस में, कोई भी इंटरेस्ट पेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ ऑन डिबेंचर्स इशूड बाय वाइडली हेल्ड कंपनी. अगर जो इंटरेस्ट है वो कंपनी पे करती है बाय पे चेक, या जो इंटरेस्ट का अमाउंट है डज नॉट एक्सीड 5,000. एनी इंटरेस्ट पेबल टू द एलआईसी और टू एनी अदर फॉर कंपनीज फॉर्म्ड अंडर द जीआईसी, जो हमारा जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972 के अंडर आ रहे हैं, तो उस केस में भी आपका जो टीडीएस नहीं होगा. एनी इंटरेस्ट पेबल ऑन एनी सिक्योरिटीज issued by a company where such security is in dematerialized form and listed on a recognized stock exchange in India in accordance with the Securities Contracts Act 1956. This is under section 193. This is the provision regarding the interest on securities. Now coming to next point number 4 regarding the dividends. Now no tax shall be deducted at source on dividends or deemed dividend under section 2 subsection 22 A to E. For details हमारा जो सेक्शन है 115 वो हम उसमें चेक कर सकते हैं. हमें जो टेबल दी गई है we'll be discussing the table in the last. Next point number 5, interest other than interest on securities. इंटरेस्ट जो कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अलावा इंटरेस्ट आपका होगा. Who will deduct the tax at source? एक इंडिविजुअल, ये एक एचयूएफ who is required to get his accounts audited under section 44AB, एक कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, लोकल अथॉरिटी, एओपी और बीओआई. पेमेंट मेड टू whom, किसको पेमेंट की जाएगी? और रेजिडेंट ऑफ इंडिया या डोमेस्टिक कंपनी को. रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगी आपकी? इट विल बी 10% फ्रॉम 1/4/2020 टू 31st May 2020 और 14 मई 2020 से 31st March 2021 के बीच में जो रहेगा उसमें रेट रहेगी हमारी 7.5%.
No deduction of tax from the following interest income, where the income or the aggregate of such income credited in the books of accounts or paid during the financial year 2021 does not exceed. कितने अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता वो? 40,000 where the payer is a banking company including any bank or banking institution, or 40,000 where the payer is cooperative society engaged in carrying on the business or banking, and the total sales, gross receipts or turnover of the cooperative society rupees 50 crore during the financial year immediately preceding the financial year in which the interest referred to in subsection 1 is credited or paid. Next, 40,000 on any deposit with a post office under any scheme framed and notified by the central government, 5,000 in any other case. Secondly, where such income is credited or paid to any bank, cooperative society or to any banking business, financial corporation, LIC, UTI, any company, any cooperative society जो कि इंश्योरेंस का बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कि अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी. Interest credited or paid by a cooperative society other than a cooperative bank to a member is thereof or to any other cooperative society. Interest in respect of deposits made under any scheme framed by the central government, interest on savings bank account, interest paid by the central government under the various direct tax laws, interest which is wholly exempt such as interest on deposits in the post office saving bank, interest credited or paid by a firm to its partners, interest credited on the compensation amount awarded by the motor accidents claims tribunal, interest on the compensation amount awarded by the motor accidents claims जहाँ पर आपका जो मैक्सिमम अमाउंट पेड है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इनकम पेड और पेबल बाय एन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी और infrastructure capital fund or a public sector company or a scheduled bank in relation to zero coupon note issued on or after 1/6/2005 by it. Interest income payable by a special purpose vehicle to a business trust. These are the provisions regarding interest other than interest on securities. This is under section 194. Now next is under section 194B, winnings from lottery or crossword puzzles. अगर आपको कोई भी लॉटरी की इनकम हो रही है या क्रॉसवर्ड पजल्स की इनकम हो रही है, जो भी पर्सन आपको पे करेगा अमाउंट, उस पर्सन को ध्यान रखना है कि अगर आपका अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपका TDS होगा, और जो TDS के लिए पर्टिकुलर रेट रहेगा दैट विल बी 30%. 30% की रेट से आपका TDS जो होगा. जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, व्हेन द प्राइस इज गिवन पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड, इनकम टैक्स विल बी डिडक्टेड विद रेफरेंस टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द कैश प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ प्राइस इन काइंड. यानी टोटल के ऊपर आपका जो TDS कटेगा. इफ द पार्ट इन कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द लायबिलिटी ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स in respect of the whole of the winnings, the person responsible for paying shall before releasing the winnings ensure that tax has been paid in respect of the winnings. यानी जिस समय पर्सन इन काइंड वाले प्राइस को रिलीज कराएगा, कैश में कन्वर्ट कराएगा, एट दैट टाइम ही इज अश्योरिंग कि वो अपने TDS के अमाउंट को सबमिट करा देगा अगर पूरा सबमिट नहीं हुआ था. व्हेन द प्राइस इज गिवन इन इंस्टॉलमेंट्स, the tax will be deducted only at the time of actual payment of each installment. अगर income tax not deductible from the income by way of bonus or commission paid to lottery agent or sellers of lottery tickets on the sale made by them under this section. So this is the provision regarding lottery or crossword puzzles. Now under section 194BB, winnings from a horse race. अगर हमें कोई भी इनकम होती है हॉर्स रेस से, तो उस केस में भी ध्यान रखा जाएगा कि आपकी जो टोटल इनकम है, इफ इट एक्सीड्स 10,000, इन दैट केस 30% TDS विल बी डन. 30% की रेट से आपका TDS जो है कटेगा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 अंडर सेक्शन 194C, इनकम टैक्स इन केस ऑफ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स. इनकम टैक्स आपका डिडक्ट होगा अगर किसी भी तरीके से कोई भी पेमेंट है जो कॉन्ट्रैक्टर्स के रिगार्डिंग है, या कोई भी ऐसा वर्क जो कैरी ऑन कर रहे हैं जिसमें सप्लाई ऑफ लेबर और कैरिंग आउट एनी टाइप ऑफ वर्क, सच टाइप ऑफ वर्क इज इंक्लूडेड. तो उस केस में जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एनी लोकल अथॉरिटी, एनी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, एनी कंपनी, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी,
जो कि प्लानिंग डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटीज टाउन्स विलेजेस का काम में लगी हुई है। एनी रजिस्टर्ड सोसाइटी, एनी ट्रस्ट, एनी यूनिवर्सिटी जो कि यूजीसी के अंडर आएगी, कोई भी गवर्नमेंट या फॉरेन स्टेट या फॉरेन एंटरप्राइज या कोई भी बॉडी एस्टैब्लिश है, कोई फर्म है, कोई एओपी है, कोई बीओआई है या कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसके अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44 ए बी ऑडिटेड किए जाते हैं। इन सभी केसेस में आपको ध्यान रखना है। तो आपका अगर कोई भी पेमेंट होता है तो देयर शैल बी टीडीएस। व्हेन टीडीएस कब होगा? जो टैक्स टीडीएस होगा वो होगा अगर आपका ये अमाउंट 30,000 से एक्सीड करता है ड्यूरिंग द ईयर, where the aggregate amount paid or credited during the financial year exceeds 1 lakh, the tax will be deducted at source. रेट ऑफ टैक्स क्या रहेंगे? एक इंडिविजुअल या एचयूएफ के केस में 1%, और ये आपका टाइम शेड्यूल आपको दिया गया है 1/4/2020 से 13 मई 2020 के केस में, और 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में इट विल बी 0.75%, और इन एनी अदर केस इट विल बी 2%, जिसमें 1 अप्रैल 2020 से 13 मई 2020 रहेगा, और 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में रहेगा 1.5%। तो दीज आर द रेट्स ऑफ टीडीएस। कुछ एक्सेप्शन रहेंगे इन केसेस में। द पेमेंट इज मेड और क्रेडिट इज गिवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्लाइंग, hiring or leasing goods carriage where such contractor owns 10 or less goods carriage at any time during the previous year, or the contractor furnishes his PAN to the tax deductor। अगर वो अपना टैक्स डिडक्टर को जो है अपना पैन नंबर सबमिट करा देगा। This is under section 194C which is payment to contractors. Now coming forward to next 194D, insurance commission। Any person responsible for paying to a resident or domestic company any income by way of insurance commission, he will be required to deduct income tax from such income at the following rate. In the case of company it will be 10%, in any other case it will be 5%, जो कि आपका एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2020 से 13 मई 2020 के बीच में, और 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में जो आपकी रेट एप्लीकेबल रहेगी दैट विल बी 3.75%. Next, no TDS shall be if income does not exceed 15,000 in that particular financial year. Now coming to next section, section number 194DA, payment under life insurance policy to a resident। अगर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी ड्यू है तो उस केस में भी आपका टीडीएस होगा, 5% की रेट रहेगी। जो आपकी डेट शेड्यूल है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 मई 2020 के बीच में, और 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में रेट रहेगी आपकी 3.75%। तो ये आपको जो रेट्स और डेट्स हैं ये आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। However, the tax shall not be deducted in the following cases if the amount is exempt under section 1010D, the payment or aggregate amount of such payments to the payee during the financial year is less than 1 lakh rupees। तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं होगा। This is under section 194DA। Then reduction of tax at source from payments to non-resident sportsmen or sports association or an entertainer। अगर आपका कोई भी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन है या स्पोर्ट्स एसोसिएशन या एंटरटेनर है तो उस केस में भी आपका टीडीएस रहेगा। और जो इस इनकम के केस में टीडीएस की जो आपकी रेट रहेगी इट विल बी 20% प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ प्लस सरचार्ज इफ एनी, अगर आपको कोई भी दिया गया है रेट, और हेल्थ एजुकेशन सेस भी आपका 4% से इसमें ऐड होगा। इफ ही इज अ स्पोर्ट्समैन, एनी इनकम रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय हिम बाय वे ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया इन एनी गेम, by advertisement, by contribution of articles relating to the any game or sport in India in newspapers, magazines or journals. If it is a sports association or an institution, the amount guaranteed to be paid or payable to it in relation to any game or sport played in India. This is under section 194E. Next, 194EE, TDS in case of payment in respect of deposits under नेशनल सेविंग स्कीम। अगर नेशनल सेविंग स्कीम के अंडर आपने कोई भी डिपॉजिट आपका है तो उसके इसमें टीडीएस रहेगा। रेट फिर से वही 1 अप्रैल 2020 से 13 मई 2020 के बीच में इट विल बी 10%,
और 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में इट विल बी 7.5%। और ये जो डिडक्शन आपकी जो है नहीं होगी अगर आपकी ये इनकम 2500 रुपये से कम होगी तो। दिस इज अंडर सेक्शन 194EE। नेक्स्ट, पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड और यूटीआई अंडर सेक्शन 194F। अगर ऐसी कोई भी पेमेंट है, कोई भी इनकम है आपकी, तो उसमें फिर से वही सेम 1/4/2020 से लेकर 13 मई 2020 के बीच में है तो 20% की रेट से, और अगर 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में है तो 15% से ये आपका TDS हो जाएगा। दिस इज योर सेक्शन 194F। नाउ सेक्शन 194G, रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन कमीशन एक्सेट्रा ऑन द सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। अगर कोई लॉटरी टिकट्स के लिए कोई भी के थ्रू कोई भी इनकम आपकी राइज होती है और वो इनकम 15,000 से ज़्यादा है तो भी आपका TDS होगा, और उस केस में TDS की रेट फिर से वही 1 अप्रैल 2020 से 13 मई 2020 के बीच में 5%, और आपका 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में जो रेट रहेगा आपका 3.75%। तो ये आपको रेट इसमें ध्यान रखना है। दिस इज अंडर सेक्शन 194G। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 194H, रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। अगर आपका कुछ भी है ऐसा अंडर सेक्शन 44AB के अंडर, अगर आपके अकाउंट्स ऑडिट किए जाते हैं और इस तरीके की कोई भी कमीशन है, ब्रोकरेज की इनकम है, तो उस केस में 1 अप्रैल 2020 से 13 मई 2020 के बीच में जो रेट रहेगा आपका TDS का 5%, और 14 मई 2020 से 31 मार्च 2020 के बीच में अगर पेमेंट आपका है तो आपकी जो रेट रहेगी 3.75%। आपने ध्यान देना है कि जो इस पीरियड के दौरान जो अमाउंट आपका एक्सीड है, इट एक्सीड्स 15,000। दिस इज अंडर सेक्शन 194H। नाउ, रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट। रेंट के केस में आपसे कह रहे हैं 194I के अंडर आपको ये कहा गया है, एक इंडिविजुअल और HUF जिसके अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AB के अंडर आपके जो हैं ऑडिट किए जाते हैं, अगर वो रेंट पे करता है और उस रेंट का अमाउंट 2,40,000 से ज़्यादा है टू रेजिडेंट इन इंडिया और डिपॉजिटेड इन अकाउंट, देन ही शेल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट द फॉलोइंग रेट्स फॉर यूज ऑफ एनी मशीनरी और प्लांट और इक्विपमेंट, जिसमें 1 अप्रैल 2020 से 13 मई 2020 के बीच में 2% से, 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में 1.5% की रेट से। फॉर यूज ऑफ एनी अदर एसेट 1 अप्रैल 2020 से 13 मई 2020 के बीच में 10%, 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में 7.5%। यू हैव टू कीप इन माइंड दीज रेट्स। तो यहाँ पर रेंट का मतलब है एनी पेमेंट बाय वट एवर नेम कॉल्ड अंडर एनी लीज, सब लीज, टेनेंसी और एनी अदर एग्रीमेंट और अरेंजमेंट फॉर द यूज ऑफ एनी ऑफ द एसेट, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, लैंड अपॉर्चुनिटी टू लैंड बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग्स, ये सब इंक्लूड किए जाएंगे। फॉर TDS द अमाउंट ऑफ रेंट शैल नॉट इंक्लूड सर्विस टैक्स, तो इसमें सर्विस टैक्स आपका इंक्लूड नहीं होगा। दिस इज अंडर सेक्शन 194I। नेक्स्ट, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194IA। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस केस में जो आपका रेट रहेगा, अगर 1 अप्रैल 2020 से 13 मई 2020 के बीच में है तो 1%, 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में है तो आपका ये 0.75% रहेगा। और जो टैक्स है, TDS जो हो रहा है, तो वो इन कैश या बाय चेक और ड्राफ्ट और एनी अदर मोड विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। टैक्स शैल नॉट बी डिडक्टेड वेयर द कंस्ट्रक्शन फॉर ट्रांसफर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लेस देन 50 लाख। अगर वो 50 लाख से कम है तो ऐसा नहीं होगा। दिस इज अंडर सेक्शन 194IA। रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम पेमेंट ऑफ रेंट बाय एन इंडिविजुअल और HUF अंडर सेक्शन 194IB। अगर एक इंडिविजुअल और HUF जो है जिसके अकाउंट्स को 44AB के अंडर ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी रेंट फॉर यूज ऑफ एनी लैंड, बिल्डिंग और बोथ एट द रेट ऑफ 5%, 1 अप्रैल 2020 से 13 मई 2020 के बीच में, और 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में इट विल बी 3.75%। अगर ये रेंट का अमाउंट एक्सीड करता है 50,000 से फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर,
So if deductee fails to provide his PAN to the deductor of tax, the tax shall be deducted at a higher rate as provided in section 206AA. So this is the provision of deduction of tax at source from payment of rent by an individual or HUF under section 194I(b). तो these are the sections जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, and now we will be discussing the remaining deductions or sections in our next lecture, next video. Thanks for watching the video.